Okay, so let's get going. So what we are going to do today, basically we'll discuss about the current market developments. अभी market में क्या हो रहा है, and then what we can expect in the market in the coming weeks and maybe coming months. Okay, so we'll analyze what is going on in the Indian market, and we'll also see what is going on in the global market. So as we normally do, we analyze not only the Indian market, we also look at the US market and other factors like gold, dollar index, crude oil, etc. So as we know, Trump has become the president, and after right after starting the presidency, Trump 2.0, so to say, he has started basically making a lot of changes in the US economic policies, financial policies, political policies. Right, we are seeing that he is stopping the US is stopping the aid to Ukraine. अभी यूएस रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसका डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. And on the taxation front or on the economic front, again, he's doing a lot of drastic changes. So he has talked about imposing taxes on Canada, Mexico, China, and he's also talking about imposing tariffs on India in April, starting from April. And that is obviously having a huge impact on the market. Global markets में उसका issue हो रहा है, impact हो रहा है. इंडिया मार्केट के ऊपर इशू इम्पैक्ट हो रहा है, यूएस मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है. सो लॉट ऑफ टर्मोइल इन द मार्केट, बेसिकली बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा है. And what we can do as a market observer or as a market participant, अभी ट्रम्प का अगला पॉलिसीज क्या होगा इसका इंसाइडर इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं पता. बट वी कैन ऑलवेज एनालाइज द चार्ट्स एंड टेक सम इंटरप्रिटेशन. ओके, थोड़ा हम लोग इंटरप्रिटेशन लेके वी कैन प्लान आवर एक्टिविटी. तो we'll study the charts and let's see what the charts are saying. Okay. So as we know, the dollar value, dollar is going higher. I mean, in terms of the USD INR, and gold is also going higher and higher because of all the political issues. इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एफ आई जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग इन द इंडियन मार्केट. एंड इफ यू सी दिस चार्ट ईयर, अभी आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा शायद, तो इंडिया में जो सेलिंग हुआ है वो हाईएस्ट हुआ है. अभी उसका रीजन भी है क्योंकि इंडिया में बाइंग बहुत ज्यादा हुआ था एफआईआई का. ऑब्वियसली ऑन द सेम नोट सेलिंग भी ज्यादा हो रहा है. सो दैट इज अगेन इम्पैक्टिंग द इंडियन मार्केट. सो एज आई सेड, हम जो कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है, we can analyze the charts, we can study the charts, and based upon the charts we can draw some inferences. So here we will move to the nifty bank nifty charts, and we'll see what the charts are indicating. In between अगर आपको कुछ query है, comment है, तो you can put it in the chat box. So before we move, quick background about myself for those of you who do not know. My name is Ritin Chaudhary, and I am running this firm RGS Consulting. We are a wealth management firm and in business from 2017. Okay, and our primary expertise is there into stock market, into private equity, and also into cryptocurrency. So just a quick background about myself. So let's head to the chart. We look at Nifty, Bank Nifty, SPX, the US index, S&P. Basically, SPX 500 is the index of largest 500 stocks in US. एंड ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंडेक्स का जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट के ऊपर होता है. तो अगर आपको पूरा वर्ल्ड मार्केट ट्रैक करना है तो एसपीएस इंडेक्स को अगर आप ट्रैक करोगे तो इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया. देन देयर इज अनदर इंडेक्स व्हिच इज नैस्डैक. नैस्डैक इज अ इंडेक्स ऑफ टॉप technology stocks in US. Okay, another major index in US. Then DXY is basically dollar index. Basically, it's an index of weighted average of dollar against some major currencies in the world. Okay. Then bond yield, basically the US bond yield. WTI is crude oil. Crude oil में क्या हो रहा है, that also gives us some indication about the world economy. And gold, of course.
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ SPX. होप यू कैन सी द चार्ट्स. चार्ट दिख रहा है सबको? जस्ट कंफर्म इन द चैट बॉक्स. ओके, थैंक्स, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. अभी अपना जो मेन एनालिसिस है वो यही पे है. ओके, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ SPX. ओके, ऑन 3 डे टाइम फ्रेम. अभी हम इसको अगर देखते हैं तो करंटली यहाँ पे इसने मेजर सपोर्ट एक ब्रेक किया है. इफ यू सी दिस पिंक लाइन, ओके, ये 5844 का सपोर्ट है SPX का. और ये 5844 का सपोर्ट ब्रेक करके अभी इसके नीचे क्लोज हुआ है लास्ट वीक. करंटली इट इज अगेन बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन. यानी लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है ये इस पिंक लाइन के नीचे क्लोज हुआ है. व्हाट इज दिस पिंक लाइन? इट्स बेसिकली द 51 EMA ऑन 3 डे टाइम फ्रेम. बहुत मेजर सपोर्ट होता है और ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया है. इसका मतलब क्या है कि US मार्केट बेरिश स्टेज में जा रहा है. ये लास्ट कब ये लेवल टच हुआ था? जुलाई 2024, अगस्त 2024 में. बट ये यहाँ से उसने बाउंस लिया था. ओके, इफ यू कैन सी हियर, देयर वाज द क्लोज वाज नॉट बिलो द पिंक लाइन. यहाँ से इसने बाउंस लिया था और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया था. बट अभी सिचुएशन उल्टा है. अभी इसने बाउंस नहीं लिया है. इट हैज गॉन बिलो दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल. और लास्ट वीक का क्लोज इसके नीचे हुआ है. अभी इसका इंडिकेशन ये होता है कि अगर ये ऐसे ही चालू रहेगा तो इट कैन गो ऑल द वे अप टू दिस येलो लाइन. येलो लाइन जो है दैट इज 201 EMA ऑन 3 डे टाइम फ्रेम. और यहाँ पे जो लेवल है इट इज क्लोज टू 5100. अभी ये 5100 तक अगर SPX आता है विच इज लाइक 11-12% करेक्शन इन SPX, तो ये बहुत मेजर करेक्शन हो जाएगा SPX के लिए. एंड नॉट ओनली फॉर SPX, दिस करेक्शन विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट. क्योंकि अगर SPX गिरता है तो डेफिनेटली सब मार्केट गिरते हैं. अगर SPX बढ़ता है तो नॉट नेसेसरी के मार्केट्स गिरेंगे. हमने दो तीन पिछले 3-4 महीनों में देखा कि SPX ऊपर जा रहा था बट हमारा निफ्टी नीचे ही जा रहा था. ओके, और अभी अगर SPX नीचे जाता है तो भी निफ्टी नीचे जाएगा. यानी क्या हुआ कि SPX ऊपर जा रहा था तब भी निफ्टी नीचे जा रहा था. और SPX अगर नीचे जाएगा तब भी निफ्टी नीचे जाएगा. सो दैट इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस. तो ये अगस्त का जो सपोर्ट था ये इसने ब्रेक कर दिया है. और सपोर्ट मेजर मेजर सपोर्ट ब्रेक कर दिया है. छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, मेजर सपोर्ट ब्रेक कर दिया है. So when some strong support like this is broken, then a bigger fall in the market always happens. That is the past. I mean, we cannot say for 100% sure, but looking at the past, this is the trajectory that we can expect. तो ये 5100 तक आ सकता है. नॉट नेसेसरी डायरेक्टली 5100 पे जाएगा. विल सी देयर आर सम सपोर्ट्स इन बिटवीन. तो ये 4 आवर पे इसने बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है. अगेन क्वाइट अ बेरिश इंडिकेटर. ओके, ऑन वन डे देर इज लिटिल बिट ऑफ अ सपोर्ट राइट नाउ. तो वनडे के हिसाब से अगर देखते हैं वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर तो थोड़ा रिबाउंड पॉसिबल है इन द शॉर्ट टर्म. इट कैन गो अप टू ले मे बी 5800 और 5850. तो अगर 5850 के ऊपर ये जाता है और रुकता है देन वी कैन से द करेक्शन इज प्रॉब्ली ओवर एंड मार्केट इज रिबाउंडिंग. बट वी हैव टू वेट एंड वॉच. अभी फिलहाल दो स्ट्रक्चर बेरिश है ऑन SPX. ओके, तो कमिंग टू निफ्टी. ओके, अगर आपका ये SPX यहाँ तक जाता है अप टू 5150 तो निफ्टी के ऊपर क्या हो सकता है? सो लेट अस टेक अ लुक. तो निफ्टी का जो 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट है इट इज क्लोज टू 21,400. So there is a high chance that Nifty will go all the way up to 21,400 in the near future. When I say near future, in coming weeks. नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो निफ्टी का इट इज अराउंड 21,400. अगर हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो थोड़ा अभी बाउंस आ रहा है, रिबाउंड आ रहा है मार्केट में, पुल बैक वी कैन कॉल इट.
एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन गो मे बी 23,500 तक, यानी अनदर 1,000 पॉइंट्स रिकवरी हो सकता है. देर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो द पॉसिबिलिटी इज लेस, क्योंकि अभी आप इमीडिएटली आपको 22,800 के ऊपर रेजिस्टेंस है. 22,800 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होगा तो फिर 23,500 आएगा. बट ऑल सेड एंड डन, ये 22,800 क्रॉस होगा कि नहीं होगा, विल हैव टू सी. मेजर रेजिस्टेंस है. एंड फ्रॉम द स्मॉलर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू, 22,800 और 23,500, दीज आर द रेजिस्टेंस लेवल. तो मैंने जैसे आरजेएस अल्फा ग्रुप में आपको बहुत बार बोला है कि डोंट रश टू बाय, वेट फॉर द मार्केट रिवर्सल. मार्केट रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक आपको, अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो जब तक मार्केट रिवर्सल नहीं होता है तब तक आपको बाइंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए. अभी जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग कंटिन्यूस रखा हुआ है, आई मीन 26,200 और रफली 26,300 में मार्केट ने पीक दिया था, और उसके बाद में बेरिश ट्रेंड चालू हुआ. आई कैन शो यू व्हेन द बेरिश ट्रेंड एक्चुअली स्टार्टेड. 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, सो यू कैन से रफली अक्टूबर में बेरिश ट्रेंड चालू हुआ था. एंड एट दैट टाइम आई हैड गिवन अ क्लियर सिग्नल टू एवरीवन कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लो, टेक आउट सम कैश फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है. और वहां से कंटिन्यूअसली नीचे ही जा रहा है. ट्रेंड इज कंटिन्यूअसली डाउन एंड डाउन. डाउन एंड डाउन का मतलब क्या होता है कि लोअर हाई हो रहा है. लोअर हाई क्या है? अभी यहाँ पे हाई था 24,800, उसके बाद में हाई हुआ 24,200, उसके बाद में हाई हुआ 23,800. तो जब तक आपको हायर हाई दिखता नहीं है तब तक आप बोल नहीं सकते कि मार्केट रिवर्स हुआ है, और तब तक आपको बेरिश ही रहना पड़ेगा या रहना चाहिए. अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो ये आपको मार्केट में आपका पैसा बचा रहेगा, एंड यू कैन मेक मनी इन द मार्केट. सो नेट नेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, there is a high chance that we will see 21,400, 21,500 levels, and another 1,000 points drop in the Nifty. अभी ये 100% होगा क्या? नॉट नेसेसरी, इट इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी. अगर बिग इफ निफ्टी गोज अबाउट 23,500 और 23,500 के ऊपर अगर रहता है तो हम बोल सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड खत्म हो गया है एंड मार्केट इज बिकमिंग बुलिश. सो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट वी ऑलवेज नीड टू बी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि मुझे क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर चार्ट पे रिवर्सल होता है तो हम बुलिश हैट पहन लेंगे. करंटली जो है मार्केट बेरिश है, सो लेट्स कंटिन्यू टू वेयर द बेरिश हैट. ओके, एनी क्वेरी हियर, एवरीबॉडी विद मी? लेट अस लुक एट सम अदर फैक्टर्स. अभी ग्लोबली क्या हो रहा है? ओके, हमने एसपीएक्स ऑलरेडी देख लिया. एसपीएक्स ने लास्ट वीक बेरिश क्लोज दिया है, और अभी वहां पे थोड़ा रिलीफ रैली आ सकता है, बट ओवरऑल इट हैज बिकम बेरिश. एसपीएक्स एसपीएक्स अभी तक अच्छा चल रहा था, टिल मिड ऑफ फेब इट वाज डूइंग गुड. बट 15 फरवरी के बाद में एसपीएक्स ने, यानी जो यूएस का जो इंडेक्स है, उसने भी बेरिश ट्रेंड चालू कर दिया है. So SPX is already bearish. Let us look at gold. Gold always gives us a very strong indication about the overall geopolitical situation globally. तो गोल्ड का अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, तो गोल्ड में कंसोलिडेशन चल रहा है. इसका 28-22 वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, बट उसके बाद में इसने वहां से ब्रेकआउट दिया. बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रैली आया. बाद में ये रिटेस्ट हुआ है 2855 का. एंड देन इफ इट गोज अबाउट 2950, तो यू विल सी अ बिग रैली इन गोल्ड. तो अगर बिग रैली इन गोल्ड का मतलब क्या होता है कि गोल्ड में अगर बड़ा रैली आ रहा है तो स्टॉक मार्केट गिरेगा. उसका रीजन ये होता है कि स्टॉक मार्केट अगर बेरिश जा रहा है तो पीपल ट्राई टू पुट मनी
इनटू सम सेफ ऑप्शंस। ओके, तो सेफ चॉइस क्या होता है? गोल्ड होता है या यूएस का बॉन्ड्स होता है। सो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो विल सी अ स्ट्रॉन्ग रैली इन गोल्ड। करंटली गोल्ड में कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके, यू कैन से देयर इज अ कंसोलिडेशन व्हिच इज गोइंग ऑन इन गोल्ड। अगर डॉलर इंडेक्स देखते हैं, सो डॉलर इंडेक्स आल्सो has given a major fall because of the tariff which Trump is imposing. तो टैरिफ के पॉलिसीज की वजह से डॉलर इंडेक्स हैज बिकम बेरिश एंड कैन गो फर्दर डाउन अप टू 95 96। ऑल्दो ये पॉसिबिलिटी कम है ज़्यादा नीचे जाने की, बट करेंटली डॉलर का भी जो है इंडेक्स वो बेरिश है। अनदर मेजर फैक्टर और मेजर इंडिकेटर फॉर ग्लोबल इकोनॉमी इज क्रूड ऑयल। ओके, हम लोग कितना भी बोले कि ग्रीन एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आज भी दुनिया जो चलती है, जो मेजर फ्यूल जो वर्ल्ड में यूज होता है वो क्रूड ही है। ओके, और क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन है, क्रूड ऑयल के कंजम्पशन से ही पता चलता है कि दुनिया का इकोनॉमी बुलिश है, बेरिश है, मार्केट अच्छा चल रहा है या मार्केट खराब चल रहा है। तो चार्टिकली अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो है वो सपोर्ट के ऊपर है। 66 डॉलर का जो लेवल है क्रूड ऑयल का, इट्स मेजर सपोर्ट लेवल। और अगर ये ब्रेक होता है तो अगेन इट कैन गो डाउन ऑल द वे टू 57, विच विल इंडिकेट दैट देयर इज अ मेजर स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। जब क्रूड ऑयल का कंजम्पशन डाउन होता है तो इट इंडिकेट्स स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। ओके, तो ऑब्वियसली अगर आपका इकोनॉमी स्लो हो रहा है तो स्टॉक मार्केट भी गिरेगा। तो दिस गोज हैंड इन हैंड और दिस कोरिलेट्स विद दिस पॉसिबल फॉल इन एसपीएक्स। अगर एसपीएक्स आपका 5100 तक जाने वाला है तो आपका जो क्रूड ऑयल है ये भी नीचे जा सकता है अप टू 57। अभी एक चीज उल्टी यहाँ पे हो सकती है कि अगर कोई वॉर सिचुएशन होता है, लगता तो नहीं है कोई वॉर सिचुएशन होगा करंटली, बट अगर वॉर सिचुएशन कुछ होता है तो उस केस में आपका क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा बट स्टॉक मार्केट गिरेंगे। आपको इसका मैं एनालॉजी थोड़ा दिखाता हूँ, पास्ट में ऐसा कब हुआ था। वी गो टू अक्टूबर 2023। ओके, यहाँ पे इसराइल के ऊपर जब अटैक हुआ था, होगा हमास वालों ने जब अटैक किया था, तो उस वक्त क्रूड ऑयल ऊपर गया था बट स्टॉक मार्केट नीचे गया था। यू कैन सी इट हियर ऑन द चार्ट्स। तो अगर ऐसा कुछ वॉर टाइप सिचुएशन होता है तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा बट स्टॉक मार्केट फिर भी नीचे आएंगे। बट करेंटली वॉर टाइप सिचुएशन लग नहीं रहा है। ओके, सो स्लो डाउन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, और अगर क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो स्टॉक मार्केट भी नीचे जाएगा। यूएस बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो इट इज रिकवरिंग। सो एज आई सेड, अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो इन्वेस्टर्स दे लुक फॉर सेफ ऑप्शन, स्पेशली द एफआईआई टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, दे विल लुक फॉर सेफ ऑप्शंस। और सेफ ऑप्शन क्या है? वन ऑफ द सेफ ऑप्शन इज यूएस बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड्स, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो क्या है कि लोग वहां पे पैसा डाइवर्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट गिरेगा और ये आपके बॉन्ड का, यूएस बॉन्ड्स का यील्ड जो है वो बढ़ेगा। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट इंडिकेटर्स। सो कमिंग बैक टू निफ्टी, एज आई सेड, इन द शॉर्ट टर्म अगर हम 3 डे टाइम फ्रेम देखते हैं तो 21,400 के आसपास इसका सपोर्ट है। ओके, लास्ट डे येलो लाइन कब टच की थी? इट वाज टच्ड वेन ऑलमोस्ट क्लोज इन जून 2022। एंड अगर हम और थोड़ा पीछे जाते हैं तो 2018 में टच हुआ था, उसके बाद में 2019 में टच होता है ना, विद इन अ गैप ऑफ 1 ईयर। अभी यहाँ पे सोचने की बात यह है कि 2022 के बाद में टच नहीं हुआ है। ओके, जून 2022 वाज द लास्ट टाइम व्हेन इट वाज टेस्टेड। तो नॉर्मली 2 साल 3 साल में ये टेस्ट टेस्ट होता है, एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये येलो लाइन टच होगा एंड देन द सपोर्ट इज अराउंड 21,400। अभी इसके नीचे जा सकता है क्या? तो विल टेक अ लुक एट दैट। अभी जैसे कि लॉट ऑफ यू नो कि आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू टच 19,500 दिस ईयर। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ओके,
A lot of people have asked me this question ki on what basis you are being so bearish. So again, we have to look at past. तो मार्च 2016 में, फरवरी 2016 में 201 EMA ऑन वीकली निफ्टी टच दिस येलो लाइन एंड उस वक्त कितना लेवल था 7000 और उसके बाद में टच हुआ ये डायरेक्ट 2020 में. सो आफ्टर 2016 आफ्टर 4 years इट टच दिस पर्टिकुलर लाइन. अभी उसके बाद में ये टच नहीं हुआ है. ओके 2020 के बाद में ये येलो लाइन टच नहीं हुआ है. वी आर इन 2025 ऑलरेडी. सो नॉर्मली 5 साल का एवरेज होता है, उस एवरेज के बीच में ये येलो लाइन का टेस्टिंग होता है. सो दिस कैन हैपन दिस पर्टिकुलर ईयर 2025 में ये होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी इज हाई एंड दैट लेवल इज 19,700. सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली 19,500 के आसपास निफ्टी नीचे जा सकता है. एंड दिस इज अ कंसोलिडेशन रीजन. इफ यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन. तो ये कंसोलिडेशन होने के बाद में 21,400 तो ऑब्वियसली एज आई सेड इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट वो अगर ब्रेक होता है तो ऑल द वे अप टू 19,500 निफ्टी जा सकता है. तो वी ऑलवेज हैव टू लुक एट लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल पैटर्न्स. उसके हिसाब से 19,500 टच हो सकता है. देयर इज अनदर पैटर्न दैट गिव्स अस सम क्लैरिटी एंड दैट इज द फिबोनाची पैटर्न. ओके अगर हम फिबोनाची देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दिस इज गोल्डन लेवल, गोल्डन सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल. यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था. सो अराउंड 19,500 कंसोलिडेशन हुआ था फ्रॉम जुलाई 2023 टू अक्टूबर 2023. यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ्स यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का. पहले ये रेजिस्टेंस था. अभी आप देख सकते हो कि जब ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद में मार्केट ने बहुत बड़ा रैली दिया. सिमिलरली जो पहले रेजिस्टेंस एरिया होता था दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट. सो द अर्लियर resistance will act now as a support and the previous resistance is always retested. ये टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल है. जो पहले का जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इसका टेस्टिंग होना चाहिए एज पर टेक्निकल एनालिसिस. ओके एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई फील कि ये 19,500 का लेवल टच होगा. अब ये कब टच होगा, वेदर इट विल हैपन इन नेक्स्ट 2 months और इट विल हैपन इन नेक्स्ट 6 months, वी कैन नॉट से फॉर श्योर. बट इन नेक्स्ट 3 to 6 months ये होना चाहिए. 19,500 का आपका लेवल टच टेस्टिंग होगा. सो दैट इज द रीजन वी आर एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप टुवर्ड्स 19,500. अभी ये होगा ही क्या, आई एम नॉट सेइंग 100% इट विल हैपन. मार्केट रिवर्स हो सकता है क्योंकि ये काफी शार्प फॉल आया है. और मार्केट अगर रिवर्स होना है तो विल कम टू नो व्हाट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स एज आई अर्लियर सेड. अगर ये निफ्टी 23,500 के ऊपर रहता है, ओके अगर 23,500 के ऊपर निफ्टी रहता है तो वी कैन से दैट अभी ये मार्केट का जो फॉल था वो खत्म हो गया है एंड प्रॉब्ली मार्केट इज गोइंग हायर एंड हायर. ओके इट इज पॉसिबल, विल हैव टू वेट. अभी हम नहीं बात कर सकते, अभी तो बेरिश है. 23,500 अगर प्रॉपरली ब्रेक होता है तो वी कैन से दैट मार्केट इज बिकमिंग बुलिश. सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी हियर, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी कैन गो ऑल द वे टू 46,500. बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है इट इज अराउंड 46,500. करंटली 48,500 चल रहा है. तो अनदर 2,000 पॉइंट्स ड्रॉप इज पॉसिबल इन बैंक निफ्टी. थोड़ा अगर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो इट कैन गो ऑल द वे अप टू 43,000. ओके ये अभी अनबिलीवेबल लगता है बट जब गिर जाता है तो फिर लगता है कि अरे उस वक्त हमने इसको नोट करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था. बट अगर आपका निफ्टी 19,500 जाएगा, बैंक निफ्टी 43,000 आराम से जाएगा. अगेन इट्स अ सिमिलर पैटर्न. और ये बैंक निफ्टी में इसका टेस्टिंग काफी फ्रिक्वेंटली होता है. ये 2013 में हुआ, 3 साल के बाद में यहाँ पे 2016 में हुआ, उसके बाद में 4 साल के बाद में 2020 में हुआ. तो अभी ये ऑब्वियसली पिछले 4 साढ़े 4 साल से नहीं हुआ है टेस्टिंग. तो ये इसका टेस्ट जो है ये ड्यू है एंड इट विल हैपन सुनर और लेटर, और सुनर देन लेटर. ओके
अगेन लाइक निफ्टी, अगर हम लोगों को अगर बैंक निफ्टी का रिवर्सल अगर देखना है, तो अगेन इफ इट रिमेन्स अबव 50,000, अगर 50,000 टच करता है, 50,000 के ऊपर रहता है, तो वी कैन से कि भाई बैंक निफ्टी का रिवर्सल खत्म हो गया है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट विल सी अ रिबाउंड। अभी बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आई विल शो यू। इसको बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, देन दिस इज योर हेड, एंड दिस इज अ पॉसिबल राइट शोल्डर। ओके, तो अभी ये राइट शोल्डर बन रहा है, अभी ये बना नहीं है। ओके, और ये अगर लेवल ब्रेक होता है 47,850, तो बैंक निफ्टी में बहुत मेजर फॉल आएगा। मेजर फॉल यानी कितना आएगा, टेक्निकली आई विल टेल यू। 47,850, 50,500, यानी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का ड्रॉप यहाँ पे आएगा, विच इज क्लोज टू 45,000। सो दैट इज व्हाट द हेड एंड शोल्डर पैटर्न पैटर्न इंडिकेट्स। अगेन अभी तक ये बना नहीं है, बट बन रहा है, इट इज इन द प्रोसेस, एंड वी कैन सी दैट इफ दिस हैपन्स, तो पूरा जो बेरिश पैटर्न बन रहा है या बेरिश ट्रेंड बन रहा है, उसको और कंफर्मेशन मिलेगा। So this is a question on a larger view. Nifty has to consolidate around a few months again. So basically question ये है कि 19,500 will give you good opportunity. Definitely 19,500 अच्छा opportunity देगा, because it's a level which is a very very strong support area. But अभी वहाँ पे भी क्या होता है, again let us look at the past. Okay, now ये जो level है, this is 19,500. Now if we go back in history, 2020 में जब ये लेवल टच हुआ था 10,400, तो लगा था कि भाई अभी मार्केट का करेक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। बट आफ्टर दैट इट अगेन वेंट फर्दर डाउन, 10,000 से इट वेंट ऑल द वे अप टू 7,300, है ना, अनदर 25-30% फॉल। बट ऑब्वियसली कोविड वाज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, और ऐसा बार बार नहीं होता है। वी गो इन पास्ट, इन 2013 यहाँ से रिबाउंड हुआ था, इन 2016 ऑल्सो यहाँ से रिबाउंड हुआ था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स यू कैन से यहाँ से आपको रिबाउंड मिलेगा। So around 19,500, there can be consolidation, but it will be overall a good buying opportunity. अगर हम कोविड का भी देखते हैं, तो यहाँ पे 3-4 महीने मार्केट डाउन था, फ्रॉम मार्च 2020 ऑल द वे अप टू जून। सो अराउंड 4 मंथ मार्केट वॉज डाउन। बट अभी प्रॉब्लम ये होता है कि रिटेल का जो है वो पेशेंस खत्म हो जाता है। 2-3 महीने भी अगर मार्केट डाउन रहता है, तो उनको लगता है कि अरे भाई सब कुछ खत्म हो गया है। सो बट टेक्निकली दिस इज अ गुड लेवल टू बाय। यहाँ से मार्केट आपको रिबाउंड दे देगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग वेरी बैड इन द वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, otherwise there is no issue. Okay, so I hope I answered your query. So let's go back to the chart. So as I said, we analyzed Nifty Bank Nifty levels, we analyzed SPX dollar yield, and so to summarize on the Nifty and Bank Nifty, so this is the current level for Nifty 22,500 and 48,497. What is the levels that we can expect? So as we saw on the charts, शॉर्टर टाइम फ्रेम में निफ्टी का सपोर्ट जो है वो 21,700 है, एंड ऑन द रेजिस्टेंस साइड इट इज 22,800। अगर 22,800 ब्रेक होता है, तो अराउंड 23,500 आएगा। अगर ब्रेक होता है तो विल वेट एंड वॉच। अगर 21,700 ब्रेक होता है, तो इट कैन गो डाउन अप टू 21,400। सिमिलरली बैंक निफ्टी करंटली 48,500 चल रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है, वी आर क्लोज टू द रेजिस्टेंस, 49,000 रेजिस्टेंस है। अगर 49,000 ब्रेक होता है, तो 5,500 आ सकता है। And the support side, 47,500 is the support. 47,500 support break होता है, तो 46,300 is again the support on the shorter time frame। यानी निफ्टी 21,700 तक जा सकता है, बैंक निफ्टी 46,300 तक जा सकता है। तो निफ्टी का अराउंड 2,000 पॉइंट्स का रेंज है इन द करंट सिनेरियो,
और बैंक निफ्टी का जो है अराउंड 4000 पॉइंट्स का रेंज है. सो वी हैव टू प्ले फॉर दिस रेंज. आप बोलोगे कि ये बहुत बड़ा रेंज है, बट देन मार्केट इज वोलेटाइल एंड वी हैव टू फैक्टर सच अ लॉन्ग रेंज. अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू अवॉइड लॉसेस और मेक मनी. सो लेट अस लुक एट द मार्केट बिल्डअप. कौन से स्टॉक्स बुलिश है, कौन से स्टॉक्स बेरिश है. वी कैन लुक एट द डेटा. So as you know, this is the built-up information. So only four stocks out of all the F&O basket, only four stocks are having a bullish momentum. Okay. So Titagarh, Solar Industries, NBCC, only four stocks. अगर हम short build-up देखते हैं, so there are five stocks which are having a short build-up. BSE, IndusInd Bank, Kalyan Jewellers, OFSS, Oracle Finance and Zomato. तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स में लॉन्ग भी नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट भी नहीं है. तो मार्केट इज अंडर कंसोलिडेशन राइट नाउ, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया है. तो ऑब्वियसली इट्स कंसोलिडेशन गोइंग ऑन. तो मार्केट अभी इज मोस्टली इन द इनडिसीजन मोड, कि कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा बाइंग भी नहीं हो रहा है, कोई स्टॉक्स में ज़्यादा शॉर्टिंग भी नहीं हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज द इनडिसीजन मोड करेंटली. सो वी लुक्ड एट द लॉन्ग बिल्ड ऑफ स्टॉक्स. Okay, so before we move ahead, there is a lot of information still to be covered. I just want to quickly give you an idea about RGS services. So, of course, I keep on giving you trainings, etc. और अगर आपका खुद का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप कर सकते हो. But in case you are interested, you can consider RGS professional services also. So we have PMS services, consulting services, and fixed return or fund management services. You can consider one of these services or a combination of these services. और अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो यू कैन रीच आउट टू मी इंडिविजुअली. Our trainings, we keep on having trainings, right? So 16th March 2025, we will have a training on in Pune. It will be a combination of technical analysis, derivative strategies, and portfolio management. All these factors will be covered. So those who are in Pune, you are welcome to register for this training. Similar training we will have online also on 23rd March. The registration link I will put in the description. So this is the training which is happening on 16th of March in Pune, Sunday. Okay, so take out some time and make use of this opportunity. So we looked at the stocks with long build-up, short build-up also we saw. So if you are buying stocks, always follow some of these guidelines for portfolio management. Never rush to buy. Always buy in 1:2 ratio. थोड़ा आपको हमेशा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ रहना चाहिए. कीप सम कैश इन हैंड. आपका जो पोजीशन साइज है, डो नॉट टेक ओवर एक्सपोजर टू अ सिंगल स्टॉक. ऑलवेज लिमिट योर एक्सपोजर 5% to 15% फॉर वन पर्टिकुलर स्टॉक. डाइवर्सिफाई कीजिए. व्हेन आई से डाइवर्सिफाई, ट्रेड इन 10 to 15 स्टॉक्स. 50 स्टॉक, 100 स्टॉक मत रखिए. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल पोर्टफोलियो दे आर हैविंग लाइक 50 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स. तो फिजिबल नहीं होता है, बट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. 3-4 स्टॉक में भी मत करो. 10 to 15 स्टॉक्स आपके होने चाहिए. ऑलवेज बुक प्रॉफिट एट डिफरेंट इंटरवल्स. स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए. एंड अगेन आई विल रिपीट, पोजीशन साइज जो है आपका 10% to 15% के रेंज में होना चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक. कोई भी स्टॉक आपको कितना भी अच्छा लगे, ओवर एक्सपोजर उसके उसमें कभी लेना नहीं चाहिए. सो दिस इज द आरजीएस अल्फा व्हाट्सएप ग्रुप. यू नो, मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी देयर. अगर आप नहीं है तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप. वी कीप ऑन गिविंग लाइव ट्रेड्स हियर, फ्री ट्रेड्स, फ्री अपडेट्स एक्सेट्रा. आप ग्रुप का इन्फॉर्मेशन सिर्फ फॉलो करके भी यू कैन मेक गुड मनी. सो आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स. अगर कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, एनी पर्टिकुलर स्टॉक यू वांट मी टू लुक एट, आई एम हैप्पी टू, मोर देन हैप्पी टू डू दैट. कुछ क्वेरीज है, you can put it in the chat box. Anybody want me to look at some particular stock or any query you have? There is a query about FII and DII activity. FII, DII का activity क्या हो रहा है? So let us take a look at that quickly.
So this is the daily information for FII and DII. ओके, तो अगर नेट देखते हैं तो मार्च में FII DII पुट टुगेदर देयर इज अ बाइंग. FII DII पुट टुगेदर देयर इज अ बाइंग इन मार्च. अगर हम डेली के ऊपर देखते हैं तो FII आर स्टिल सेलर्स. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम February 19 FII आर कंटिन्यूसली सेलिंग. इनका पूरा सेलिंग कंटिन्यूसली चल रहा है, अभी तक इन्होंने बाइंग चालू नहीं किया है. तो जब तक ये बाइंग चालू नहीं करते वी कैन नॉट से दैट द ट्रेंड इज रिवर्सिंग. जब तक FII का बाइंग चालू नहीं होता है वी कैन ऑलवेज से मार्केट अभी भी बेरिश ही है. DII का अगर देखते हैं तो DII आर डूइंग कंटिन्यूसली बाइंग. ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट. अक्टूबर से मार्केट नीचे जा रहा है. जो लोग ब्लाइंडली SIP करते हैं या स्टॉक्स का बाइंग करते हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, अभी उनका सबका जो बाइंग है वो लॉस में है. दे आर डाउन बाय 20%, 30%, इवन 50% फॉर दैट मैटर. तो आपको हमेशा ट्रेंड समझना चाहिए और ट्रेंड समझने के बाद में उसके हिसाब से आपको बाइंग सेलिंग करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ ब्लाइंड SIP कि चलो क्या है एवरेज आउट हो जाएगा. बट वो जब आपका 20% 30% नीचे जाता है तो रिकवरी को उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है. तो यू शुड ऑलवेज do some study before just allocating your money in the market. तो कमिंग बैक डेली के ऊपर तो इनका FII का सेलिंग अभी भी चल रहा है. DI तो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स एक्सेट्रा जिनको मार्केट का कुछ समझता नहीं है वो ब्लाइंडली लोगों को SIP करने के लिए लगाते हैं और लोगों का बाइंग ब्लाइंडली चालू है और पोर्टफोलियो नीचे नीचे जा रहा है. मंथली के ऊपर देखते हैं तो FII का अगेन एज वी नो अक्टूबर से कंटिन्यूसली सेलिंग चल रहा है. DI ऑब्वियसली बाइंग चल ही रहा है. सो कमिंग टू द पॉइंट, FII का सेलिंग अभी तक चालू नहीं हुआ है, बाइंग अभी तक चालू नहीं हुआ है. सो टिल द टाइम FII डोंट स्टार्ट बाइंग ऑन डेली, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश चालू रहेगा. ओके, so that's it from my side, friends. Thank you for joining today. Thank you for taking out time on a Sunday.